So, on the occasion of the Women's History Month, we bring to you a webinar with Seema Gautam and Valentine Henault. Um, Valentine Henault is a French filmmaker who has joined us today. And they recently wrote a book, I Had an Indian Dream in the Hell of Gorakhpur Prison. He was jailed for being part of the Ambedkar's People's March for land rights of landless Dalits, OBCs, and Muslims. Seema Henault is the president of Ambedkar Jan Morcha. Ambedkar Jan Morcha is an organization fighting for land rights of landless Dalits, OBCs, and Muslims, against Dalit atrocities for victims of sexual violence, and against problems of microfinancing in Gorakhpur. We will be in conversation with them regarding their work, Valentine's experience in jail, and Seema's experience as a Dalit activist. So let us begin by asking you questions, Valentine. Um, would you like to say anything at the beginning? No, but first, thank you to all the participants for being here. I'll be open to any question, and maybe I can just tell you how I ended up in Gorakhpur jail, how this happened. Okay, so yeah, the first. Yes. So first, I came in India after I finished a film in France, and it was for holidays. I just wanted to discover India. I had a very high idea of India from the things I had read, and maybe I had some spiritual fantasies. So I was not at all in a political mindset when I came. After 1 month being in India, I started feeling unwell somehow because I could sense that I would talk always to the same people, maybe English speaking people, higher caste people, who would tell me that castes don't exist, or yes, they exist, but it's not so important. It's not something crucial. It's from back in the time, from the Middle Age. It's our Indian problem. They didn't want to express that, but I could see physically that there was a difference between some people and others, that some people were very confident, able to express themselves, and were like monopolizing the speech about India, and others I would not have access to them, and they will just lower their head and pass. And I felt that there was something I was not understanding about India. So I think that all these spiritual fantasies that I had just broke, and I started exploring this subject of caste, and I discovered quickly the long series of atrocities that are happening, crimes against Dalit women. And I met Seema Gautam, which will come soon, but I understood she had problem of connection. And I was mesmerized by her courage in a very, very difficult environment. Gorakhpur, everybody knows what it means in Uttar Pradesh, Yogi Adityanath city. And I decided to prepare a documentary film about her, just to follow her struggle. But at the time, I was not filming. I was just being there, trying to know better their organization, who they are, what they do, and gathering more information. And I intended to go back to France to finance the film and to come back for the shooting. So one day in October, there was a gathering they organized in front of the city hall, I think. And I just show up. I just show up to see, not filming anything, not being part of the interventions. I was just there. And after 15 or 20 minutes, I was surrounded by Gorakhpur local intelligence. And from there, from this first suspicion, it never stopped. I was arrested at my hotel during the night, then interrogated, and then sent directly to jail. That's how it happened.
Um, so, what was your experience inside the jail, and what realities of Indian society did you encounter there, as you've highlighted in your book as well? Mm. So in my books, I write about the conditions in jail, but I also write about other people's stories. All these guys, all these other inmates I met there, and everybody had a crazy story. Yeah, the conditions were obviously very bad. We were in barracks with no bed, nothing, no sheets, just 300 people lying on the floor side by side. That was at the beginning. Then I was transferred to Pagalpur, which translated to the crazy city. So a barrack where they will gather the psychiatric cases of the jail. But actually, it was. I see a question. Maybe should I answer to the question? Okay, I finished. What? So Pagalpur, they would bring me there not because they thought I was crazy, but because it was a privilege. I met another inmate, a writer. That's how we call the inmates who are in charge of something inside the jail. And he was in charge of the psychiatric cases, and he brought me there because there was a little bit more space and there was shadow because there were big trees next to the barrack, and somehow it was a little bit more pleasant, even if you had crazy people screaming in the night. So pleasant is something, a balance you have to find in jail. So this is for the conditions. It's hard. You have to find ways to improve your food and so I was on material conditions in jail, but then what struck me the most is the fact that I had the impression that lots of people were innocent. First, I had this thought that, okay, I am innocent. I didn't do anything wrong nor anything illegal, so I will go out soon. And then I understood that most of the inmates were there for bad reasons. So it could be for love jihad, it could be because they were journalists, it could be simply for extortion because somebody tried to frame them and was asking money in exchange of withdrawing their complaint. So from I try to explore this feeling in jail, trying to speak to lots of people to understand what were their story and how they ended up there and how this system could work, that 80% of something like that, it's 80% of the prisoners were not condemned still, they were on trial. So it jail looked like a kind of hole where you put somebody and then he disappears, and it's extremely hard to get out, even if you've not been proven guilty. I think we can take the question that came in the chat box. Okay, alors, was Valentin aware why he was arrested? Did the police inform him? So this is an interesting question, because there is the speech, there is the backstage information, there is what the legal matter. So legally, they arrested me on the basis of the Foreign Act, and they said it was for illegal financing of NGOs, while there was no NGO because Ambedkar Jan Morcha is not an NGO, and there was no financing. It didn't give them anything at any point. We had, I was filming them, that's all. I was preparing a film about them. Then there's what the police tells you at the Tana, at the police station. So they were very angry at me. Why do you want to make a film? Why do you poke your nose in Indian affairs? Go back to your country. So, you know, they are always using this anti-colonialism, but in a very wrong way, to tell you to go back to your
your problems and care about European colonization. And I remember this superintendent of police telling me, Dalit people are doing very well here. They are doing very well, you understand? So they had this kind of, all the policemen, this kind of revenge attitude. So you're gonna see, you will have surprise tomorrow. So this is another point. Then that's what they did with it in the media, presenting me as a terrorist for the 2 next days. They had arrested dangerous conspiracy from an international weird guy, so me. So they try to present themselves in an heroic manner. In the same time, it helped them to say something very precise. This Dalit struggle is not an Indian struggle. It's not a local struggle. It's something directed from the outside. So it's not something legitimate. So it helped them to have this discourse. And then I think something was very important. It's the fact that Yogi had planned to visit the day after or 2 days after. So when the organizers of the gathering started threatening with staying in front of the city hall until their demands are met, I think police started to freak out, and they started arresting everybody because they needed to clean the place for Yogi the day after. So yeah, there are lots of different causes that meet at some point, and with the consequence that you're sent to jail. And should I answer to the next question from Sanjana? Yeah, sure. Could you talk about your experience of anti-caste activism, particularly early or before you came to India? Before I came to India, I had no experience of caste nor anti-caste activism, and even though I don't really have an experience. My only experience is sometimes I spent in Bihar, but the 3 weeks I spent with Seema and seeing how she goes to the village trying to convince people, and how she fights the legal cases to convince the victims, to the survivors, to go on trial. But when she will connect, she will answer properly, because she knows much better than I do. And I see also, hi Valentin, how did you free yourself from prison? So I just took my chains off. Free myself from prison. I was released on bail, which surprised me a lot, because everybody was telling inside the jail that at the stage of the CGM, you're never released. It's when you go to the court after the CGM, it can happen, but at this stage it doesn't happen. But for me, it happened, and I think that somehow this woman, the judge, had some kind of some kinds of ethic. She came to visit me at some point after 3 weeks to understand why I didn't apply still for bail. So we fought a legal case with lawyers. The first lawyers I got, I sensed that they were corrupted and they were working for the police. So I had to find others, and luckily from friends in India, I found help, and I found reliable lawyers, and we could fight the legal actions, and I was released on bail. But that was only the beginning, because then it took me months to get my passport back and be able to come back in France. I see a question. Do you think you were treated better because you weren't from India? For the legal process, I don't know.
because I was released on bail, and then I pleaded guilty. I'm not guilty of anything, but I pleaded guilty because otherwise I was stuck in India for years with my visa cancelled. I couldn't work. I couldn't have a home. I couldn't be anywhere. So I thought, or I live this nightmare for years fighting for my innocence, or I just plead guilty and I find a way out, because that was my concern. And I pleaded guilty, and it was a kind of special weird arrangements between the lawyers and the judge, involving obviously some money. And I was sentenced to 1 month already done, and a fine. And then I still had to fight a legal process because I had a lookout circular which was preventing me to go out at every border. But I was the legal case was over at that point. So on a legal basis, I don't know if I was treated better because I wasn't from India. Also because the embassy didn't do anything. But the way I was treated in jail, I was obviously treated better because I wasn't from India, or because by the mere fact that I'm a white privileged European, I enter the category of yes, privileged, rich people, higher caste. So I was protected somehow from the guards because they are dangerous in jail. I was not beaten. Lots of people are beaten in jail. I was not. I was sometimes threatened, but not beaten. And a nightmare for the prisoners comes from a constant harassment from the guards for money. They are trying to extort you money for each and everything, to go to the Mulakat, to go to see your family. When you try to bring back some clothes, some food that they have brought you, they do everything in exchange. They threaten you to go to the punishment barrack if you don't give them money. So you are under this constant pressure by the guards. And there were orders from the jailer, the chief of the jail, to protect me. So I didn't have to go through that, and it's a huge relief compared to what other prisoners were facing. Yeah, before we kind of take these questions, I would like you to speak a little bit more about the realities of Dalits that you saw in, like, while thinking of making that film with Seema, and also the realities in prison you have already spoken about, but like, what did you experience in India as? So I told you there's this physical feeling. For me, I feel like caste is something that you feel very physically, because I could sometimes meet very bright people, graduated from the university, and I don't know if I say something wrong, but I talk under the control of all these people that know much better the caste situation than I do in India, but I could feel that they were lacking confidence, that was something, the caste deeply rooted in your body, in the way you interact with the world. And then when I was following Seema in all these villages, I could sense segregation. You will have villages with a kind of border, Dalit area on the side, working in the fields of the Brahmins or other higher castes which were there. And you could sense fear, misery from one part, and well-being from the other parts of the oppression. It was kind of an apartheid. I could feel in the countryside these segregations. And then with Seema, I've been meeting some victims or mother of victims. And they will tell me the situation, and it's absolutely awful what they had to go through. And there's the crime and the way they are committed
clearly as if Dalits were not human beings. And after that, there is another layer, obviously, which is the impunity. So I remember this mother, her child had been murdered by some higher caste neighbors, and she could cross their way in the streets each and every day, and they will make fun of her. Like, look, we killed your daughter, but we will get away with it. It's something very, very cruel. That's what I remember. Very dark, very. But Sima, no, everything much better in detail. I can only tell you the what I sensed, what I felt from 3 weeks or being in India, a little bit more experience. And then caste inside the jail is something quite obvious too. In some barracks, you have the Brahmins, but it's not necessarily the higher caste, because some barracks were controlled by some caste. I remember the Yadev were controlling one of the barracks, but in some of the barracks, the organization of the space is made that next to the entrance, where there's more light and more space, you have privileged people, whether it's because they higher caste or because they're rich or because they have a status in real life. Then in the bottom, next to the toilets, where there's no light and it stinks, you will have packed lots of people who were from lower caste or Dalits. So this is one thing. Then you have Muslims and Dalits always working, so they are the cleaning. They are part of the cleaning team of the jail, and this is like, if you are a Dalit, you go to these teams, and I was very surprised that they ask you very often your jati in jail. My jati was weird because I was Videshi, but they would constantly ask for jati, and I thought it was anti-constitutional, but I think that it in prisons rules it remains something legal to ask the caste. So inside the jail, obviously, that repeats. I could feel these discriminations too. Could you also speak a little bit about the writing process of your book and about your book also? And also, how did you join the Ambedkar Jan Manch? These are two different questions. So I didn't join them. I had a film project on Sima. So I wanted to follow her struggle and follow Ambedkar Jan Morsha's struggle also. But I didn't consider myself as a member or as a part. I was a journalist or a filmmaker. I was embarking because I was admiring her struggle, and I thought it was extremely important in a long-term project with her. And your other question was, sorry, I forgot. Regarding your book and how was the writing process? Yeah. Yeah, the writing process. I started in jail like the second day. First day, after two days at the Tana, being interrogated again and again, and I had to sleep for first of all, and then I started because that was a way to resist, to find the sense, because I stayed only 1 month in jail, but I was extremely afraid to spend much more time in jail. I had the newspapers coming in with double page describing all my items, my bag, saying that I was part of an international conspiracy, and I knew that the Uttar Pradesh state or Indian government, they could say anything about me. They would be right, any lie. So I was under their total control. They could do anything with me. So I was extremely afraid. And also I was angry at all the things I had seen and the way they treat people
not me, but all these 3,000 people that were inside the jail and the members of the Ambedkar Jan Morsha. And I thought that if I have a power, maybe it's to write, and when I get out, to try to speak out and use my voice, and I felt that I had something important to say, that I could testify inside this jail. So I started a writing process every day, and it was kind of forbidden, but not so forbidden. So you should not show it too much to the guard, but in the same time, so people were writing some things, letters to their family. So I was trying to be discreet. And I remember maybe I was, because days are very long in jail, you have nothing to do except queuing for food or watching TV. But watching TV, you drive crazy watching TV hours and hours. And each and every time I will testify something, or I will speak to an inmate, and he would tell me some part of his story, I will go and write and write. And when I was released, I remember I was extremely afraid, because I had these scraps of paper and I thought everything is there, and I was very afraid not to be able to take them out. So I built a system hiding things in different parts of my clothes, asking for other inmates to take some things out. And I divided the paper I had, and I was able to take it all out. And so from there, that was like the rough material. And then I spent a year rewriting and trying to remember everything and trying to build a powerful, efficient story that can make you feel you're there in this Gorakhpur jail, and you're living with this, with me, with these people that I meet, trying to make it immersive enough. Here is the process. So I think Seema has been able to join now. आपको first of all welcome हमारे side से. थैंक यू आपको भी, और खास करके मैं वैलेंटीन के संघर्ष को भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज फिर हम लोग एक बार मिल गए, तो उनके वजह से धन्यवाद है सभी लोगों को। और आप लोग जो काम कर रहे हैं ना, जो सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों का काम, जो समाज के लिए जिनका आवाज दबा हुआ है, आप लोग उसको लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए आपको स्पेशली आपके टीम को पूरे धन्यवाद। थैंक यू मैम। हम अभी आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। सो वैलेंटीन, आई विल बी आस्किंग सीमा क्वेश्चंस नाउ। Okay, do you understand Hindi? I used to, because I communicated with Seema in Hindi when I was there, but I forgot a lot. वैलेंटीन हमको मेरी भाषा को अच्छे से समझ चुके, क्योंकि हम साथ में 10-15 दिन हम काम किए थे फील्ड में जा करके, तो मुझे लगता है कि वैलेंटीन मेरी भाषा समझते हैं। समझता हूँ हिंदी भूल गया, समझ सकता हूँ। तो मैम, हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि अम्बेडकर जन मोर्चा की शुरुआत कैसे हुई है, आप उस पर थोड़ा बात कर सकते हैं? जी, अम्बेडकर जन मोर्चा का शुरुआत देखिए, सबसे अगर मैं कहूँ तो एक तो भारी क्षति, मेरा खुद अगर मेरी बात करें कि मैंने अम्बेडकर जन मोर्चा ज्वाइन क्यों किया और शुरुआत कैसे हुई, तो जब से मेरी जर्नी है तब से अम्बेडकर जन मोर्चा का शुरुआत भी है। तो एक भारी क्षति के बाद हम लोगों ने अम्बेडकर जन मोर्चा को, निजी क्षति हुई जिसमें मेरी माँ का हत्या हो गया। मेरे पेरेंट्स पहले, मेरे फादर नहीं रहे, उसके बाद मेरी माँ का भी हत्या कर दिया गया। फिर हमें बहुत मशक्कत हुआ अपने लिए न्याय मांगने की, और न्याय के लिए दर बदर भटकती रही, कभी इनके दरवाजे कभी उनके दरवाजे, लेकिन न्याय न मिलने के कारण होता ना कि मैं आपको बताऊं कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी उस समय,
गोरखपुर से सेंटर से आईएएस कोचिंग सेंटर से। लेकिन जब माँ का हत्या हो गया, फादर भी नहीं रहे, तो हमारी पढ़ाई खत्म हो गई और मेरे छोटे भाई बहन रहे, उनके लिए मैं ही मदर फादर या पिता का बहन का रोल मेरे लिए ही बच गया। तो मैं अपने लिए न्याय मांगती थी और न्याय मांगते मांगते मैं लोगों के लिए काम करने लगी। और कब मैं इतना बड़ा मेरा मतलब संगठन बन गया, कब इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, कब समाज के लिए इतना बड़ा हम लोगों ने जन आंदोलन करना शुरू कर दिया, इसका मतलब पता नहीं चला। क्योंकि जब आप काम कोई शुरुआत कहते हैं सच्चे मन से करते हैं तो लोग काम आप करिए, कारमा बढ़ता जाता है। तो वही एक रहा कि शुरुआत तो एक बड़ी क्षति से हुई, लेकिन ये रहा कि बड़ा कारमा बन गया, बड़ा आंदोलन हो गया। और जो हमारे संगठन के मुख्य संयोजक है, तो उन्होंने भी बीएसपी ज्वाइन किया था। उनका 20-25 साल श्रवण कुमार निराला जी ने बीएसपी में रहे। लेकिन बीएसपी में क्या हुआ कि कुछ उनके साथ भी ऐसे घटनाएं हुए कि 20-25 साल के संघर्ष को दरकिनार कर दिया गया। तो जिससे उनको भी काम करना था एक प्लेटफॉर्म पे। जो काम करता है समाज में, उसको कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कि हमें एक संगठन, एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। जो काम किया वो बैठेगा नहीं कभी। तो उनको भी चाहिए था, फिर मुझे भी चाहिए था, एक काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था कि मैं एक बैनर चाहिए था। तो हम लोगों ने इस तरह से शुरुआत किया अम्बेडकर जन मोर्चा का, और जिसमें लगभग 10,000 लोग मतलब जुड़ चुके हैं उस संगठन में। और आगे आपकी आवाज थोड़ी गांव में ब्रेक ऐसे हो लोग रही दिखे। है। आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ, हेलो? अब आ रही है। हाँ, तो जो गांव में जो गोरखपुर की बात करूं तो गोरखपुर ग्रामीण एरिया में जो अभी भी लोग हैं जिनके पास छप्पर के मकान है, मिट्टी की मकान है, पॉलिथीन डाल के रहते हैं। तो हमने कहा कि सरकारी आवास मिल रहा है। सरकारी आवास हम लोगों ने दिलाने के बहुत प्रयास किए, लेकिन सरकारी आवास उनको नहीं मिल पाए। कारण ये रहा कि उनके नाम से जमीन ही नहीं था। बहुत सारे लोगों के पास सरकारी आवास आए, लेकिन सरकारी आवास चला गया, वापस हो गया। तो इसके लिए हम लोग बहुत चिंतित थे कि मतलब आज भी छप्पर के मकान में रह रहे हैं, लेकिन उनको सरकारी आवास नहीं मिल सकता, उसके लिए हम क्या करें। फिर हमारी टीम ने इस पे बहुत जैसे हम लोगों ने तेलंगाना का उदाहरण लिया और जगहों से लिया कि भाई तेलंगाना में भी पिछले 2019-20 में तेलंगाना की सरकार ने 3-3 एकड़ जमीन दिया। तो हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में 5 किलो राशन या अन्य राज्य में 5 किलो राशन क्यों? जब भारत एक कृषि प्रधान देश है और संविधान सभी क्षेत्र में बराबर की भागीदारी देने की बात करता है, तो हम क्यों न जमीन में हम सभी को क्यों ना मिले। तो इसलिए हम पहला जन आंदोलन अम्बेडकर जन मोर्चा के तरफ से 17 दिसंबर 2022 को किए, दूसरा हम 17 मार्च 2023 को किए। और जब हमारी बात नहीं सुनी गई, सरकार ने एकदम अनदेखा कर दिया, तब हम लोगों ने डेरा डालो घेरा डालो, जमीन मिलेगी तभी हटेंगे, नहीं तो डटे रहेंगे, ये हमारा स्लोगन था। और हम 10 अक्टूबर 2023 को हमने जमीन आंदोलन बड़ा किया था, जिसमें वैलेंटाइन थे, जिसमें मतलब वैलेंटाइन को नहीं पता था इससे पहले कि हम जन आंदोलन कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता था। वो एक डॉक्यूमेंट्री के पर्पस से आए थे, जो दलित महिलाएं काम कर रही हैं, दलित लड़कियां काम कर रही हैं, उसके पर्पस से आए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद हमारा कुछ और ही चल रहा था, हम आंदोलन के लिए काम कर रहे थे। तो उन्होंने उस आंदोलन में जो भी हमारी गतिविधियां था उसको उन्होंने रिकॉर्ड करने की उन्होंने हमसे बाकायदा परमिशन भी लिया था। तो इस तरह से हमारे मतलब खास करके हमारे जो जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इस तरह से हमारा चल रहा था। तो आपसे दूसरा क्वेश्चन ये है कि यूपी में जो दलित है, ओबीसी है, मुस्लिम और जो महिलाएं हैं, खास करके पिछड़ी समुदायों की महिलाएं, उनकी स्थिति क्या है?
देखिए दलित समुदाय की स्थिति अगर बात करें तो पेपर की बात करेंगे तो पेपर में तो विकास की गंगा बही रही है। पेपर में न्यूज में अगर न्यूज उठा करके देख लिए उत्तर प्रदेश की बात करूं, खास करके मैं गोरखपुर की बात करूं तो गोरखपुर शहर में अगर आप आएंगे तो शहर दूसरा है, और लेकिन गोरखपुर 20-25 किलोमीटर दूर जैसे आप जाएंगे तो आज भी दलितों के बस्ती में जाने के लिए रास्ते नहीं है, पगडंडी से आज भी जाना पड़ता है। आज भी उनके बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है। आज भी उनके लोग जो दलित महिलाएं हैं दूसरों के खेतों में उनके घरों में काम करके जीवन यापन करने के लिए विवश हैं। आज भी उनके घर के पति जो होते हैं या बेटा है, पुरुष हैं, वो बाहर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में काम करते हैं। तो ऐसे में जो दलित महिलाओं के साथ जो घटनाएं होती हैं, जैसे रेप होता है या उनके साथ मारपीट होता है, तो ये सब घटनाएं आम हो जाती हैं, क्योंकि उनके साथ तो मतलब अगर वो केस घटनाओं को लेकर थाने पे भी जाती हैं तो उनके पास एक तो सोशल उनके पास वो नहीं है, सोशल सपोर्ट नहीं है कोई उनके पास। दूसरी बात है उनके पास आर्थिक सपोर्ट नहीं है। तीसरी बात यह है कि उनके पास जानकारी की अभाव नहीं है, शिक्षा की अभाव है। ठीक है, जानकारी की उनको जानकारी नहीं है, शिक्षा की अभाव है। तो इस कारण से दलित महिलाओं की बात करें तो उनकी जीवन दयनीय है। लेकिन हाँ, अगर आप कहें कि पेपर की बात करेंगे, न्यूज अखबारों की बात करेंगे तो हम चांद पे भी पहुंच रहे हैं। न्यूज की बात करेंगे तो बहुत अच्छा है, दलित परिवार बहुत अच्छे से है। लेकिन अगर हकीकत बात करेंगे तो आज भी महिलाएं हैं जो एक वक्त की रोटी के लिए तरस रही हैं। आज भी महिलाएं हैं जिनके साथ रेप होता है, एफआईआर नहीं लिखी जाती है, थाने के पुलिस बोलता है कि तुम्हारे साथ, अरे तुम तो पैसे के लिए ये सब कर रही हो, तुम्हारे साथ तुम लोगों की आदत यही है। तो हकीकत कुछ और है और जो पेपर में जो न्यूज में दिखाई जाती है वो हकीकत कुछ और है। तो दलित महिलाओं की बात करें, पिछड़ी समाज की महिलाओं की बात करें, अगर मैं घटनाओं की बात करूं तो जब से मैं काम कर रही हूं तो अभी मैं आपको घटनाएं कुछ गिना सकती हूँ कि जैसे अभी रौनियार समाज की, ओबीसी समाज की एक बच्ची थी जो 17 साल की थी, काली मंदिर योगी आदित्यनाथ के मंदिर से मात्र 7 किलोमीटर दूर पे ही उसके साथ 2 बजे दिन को 22 दिसंबर 2022 को उसके साथ रेप होता है। फिर उसको गला दबा करके मार दिया जाता है। और जब मैं पहल कर रही थी, जब मैं उसके लिए न्याय मांग रही थी तो मेरे घर पे छापे मार दिए गए। रात में ही मेरे घर पे लगभग सैकड़ों पुलिस ने जाकर के मेरा घर घेर लिया था। मतलब आरोपी जिसमें नामजद एफआईआर दर्ज हुआ उसको कुछ नहीं किया जा रहा है, लेकिन मेरे घर पे छापे मारे गए थे। अगर मैं बात करूं तो एक महिला है जिनके पास जमीन नहीं है, 22 फरवरी 2021 की घटना है। एक दलित महिला के 11 बजे दिन को ही गला दबा करके हत्या कर दिया गया गोरखपुर भूसवल केस में। गोरखपुर की बात करूं तो अप्रैल 2022 में तीन ओबीसी समाज के मतलब एक माँ, बेटी और पिता को 6 बजे दिन को ही मतलब काट दिया गया, मार दिया गया। 6 बजे मतलब शाम को ही मार दिया गया। और उसमें भी वही लीपा पोती करके उसमें भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बात करें तो अभी 2023 की 22-23 की घटना है। अनीश कन्नौजिया जो एक दलित समाज का लड़का था जो शादी कर लिया था ब्राह्मण लड़की से, उसको 2 बजे दिन को घेर करके काट दिया गया बीच चौराहे पे। और कुछ मतलब इस तरह से है। अभी मैं बात करूं तो एक दलित 16 साल की बच्ची है 2022 में, और 20 फरवरी 2022 की घटना है जिसको 4 लोगों ने, दरिंदों ने उसके साथ दरिंदगी करते हैं। जब वो एफआईआर लिखाने के लिए जाती है तो उसको ये कह करके भगा दिया गया कि तुम मतलब तुम्हारे कपड़े में जो लगे हैं, कीचड़ लगे हैं, वो ऐसे ही लग गए होंगे, तुम लोगों पे आरोप लगा रही हो। तो इसको मतलब इस तरह से मेरे पास घटनाओं की बात करें तो मेरी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है जो मैं तो यहाँ पे चुनौती देती हूँ कि भाई जो मेरे पास घटनाएं हैं, जो घटनाओं की मैं जिक्र करती हूँ उसमें बता दीजिए कितना पहल किया गया है, कितना। यहाँ स्थिति ये है कि अगर हम लोग तो कोशिश करते हैं कि हमारे सामने अगर 10 घटनाएं आती हैं तो उसमें से बहुत मुश्किल से, बहुत कोशिश के बाद एक से दो ही केस में एफआईआर हो पाती है, और वो भी उसको कोर्ट तक जाते जाते तो मान लीजिए शून्य के बराबर ही बचता है। ये दलित महिलाओं की या पिछड़े समाज की महिलाओं की ये स्थिति है। बहुत दुखद है सुनने में।
आपसे अगला सवाल ये है कि बीएसपी के शासन के दौरान और कांशीराम के काम के बाद यूपी में क्या बदलाव आए, और क्या आपको लगता है कि मायावती के नेतृत्व में बीएसपी वैसे ही है जैसे कांशीराम के समय में थी? अगर बीएसपी की हम बात करें तो जो कांशीराम साहब की बीएसपी थी, तो उस समय मैं बहुत छोटी थी। मैं जब पढ़ाई करती थी तो मुझे ये भी नहीं पता था कि राजनीति क्या होता है, नेता क्या होते हैं, या कुछ चीजें वो मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था। लेकिन मैं अपने हमारे पिताजी थे बीएसपी के बहुत बड़े फैन थे, और एक तरह से कहिए कार्यकर्ता भी थे। हमारे यहाँ हम एक कृषि मतलब हम एक किसान परिवार से हम आते हैं। तो हमारे पिताजी जब भी बीएसपी के रैली कहिए या जब भी कुछ ऐसी कार्यक्रम होता था तो वो अपना गेहूं या धान बेचते थे, फिर चंदा देते थे या फिर वहां जाने की कोशिश करते थे। तो उस समय की जो बीएसपी की बात कही जाती थी या जो मुझे सुनने को मिला कि बीएसपी एक अगर नीला झंडा अगर दिखता था तो लोगों में एक खौफ बना रहता था कि नहीं, मतलब किसी के साथ, दलितों के साथ या पिछड़ों के साथ, मतलब जो मजलूम है, शोषित वर्ग है, उसके साथ गलत होगा तो आपके साथ बुरा हो सकता है, आपको कानून के कटघरे में आना पड़ेगा। लेकिन अगर आज की बीएसपी की बात करें, बहन जी की आज की बात करें, 2012 से अगर हम बात करें, 2012 से अगर मैं बात करती हूँ तो कांसीराम की वो बीएसपी नहीं है। कांसीराम की बीएसपी खत्म हो गई है, नाम मात्र की है। क्योंकि आज जो दलितों के साथ चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे बदायूं की घटना हो, चाहे गोरखपुर की घटना हो, चाहे कुशीनगर की घटना हो, मतलब कहीं भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे जिस तरह से जघन्य अपराध हो रहे हैं, वहां पे बीएसपी बहन जी एक सलाहकार, बीजेपी की सलाहकार के रूप में काम करती हैं। आप देखेंगे कहीं भी, आप कोई भी अखबार उठा करके देख लीजिए तो बीएसपी मतलब बहन जी का ये कहना कि बीजेपी को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। बेटियों के साथ अगर रेप हो रहे हैं, हत्याएं हो रहे हैं, तो उसमें भी उनका कोई खास पहल नहीं है। जो उनके इस समय के कार्यकर्ता है, मुझे दुख होता है कि जो उनके कार्यकर्ता हैं वो भी उसी तरह के ढल गए हैं, उसी रवैये में आ गए हैं। तो उनका भी यही है कि जब चुनाव आता है तब वो चुनाव के नाम पे जब गांव में जाएंगे, गांव में लोगों से कहेंगे कि भाई समाज के नाम पे वोट देना है, जो भी है। लेकिन अगर किसी बेटी के साथ घटना हो गया, किसी के साथ रेप हो गया, किसी के साथ हत्या हो गया, किसी का सर फोड़ दिया गया, अगर ये बात अगर सामने आती है तो बीएसपी के कार्यकर्ता, खास करके बीएसपी के कार्यकर्ता कहते हैं अरे वोट आपने नहीं दिया ना, वोट नहीं दिए तो भुगतो। मतलब जो कांसीराम साहब की बीएसपी थी उसमें ये नहीं कहा जाता था, चाहे आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप वोट दिए हैं कि नहीं दिए, पीड़ित को पीड़ित की तरह से देखा जाता था और न्याय के बात किया जाता था। ठीक है, वोट देना न देना वो अलग बात है, लेकिन आज की जो बात हो रही है, आज जो दिखने को सुनने को मिलता है कि आपने वोट नहीं दिया तो भुगतना पड़ेगा, आप वोट दीजिए तभी आपके साथ, मतलब एक मैं उदाहरण की तर्ज पे अक्सर मैं कहती हूँ कि मान लीजिए आज मुझे बुखार हो गया है और मुझे पैरासीटामोल की जरूरत है कि भाई 5 से 10 रुपया में मुझे दवा मिलना है और मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन मुझसे ये कहा जाए, आपसे मैं कह रही हूँ कि मुझे 5 से 10 रुपया का पैरासीटामोल दे दीजिए, और आप कह रही हैं कि नहीं पहले मुझे सरकार बनाइए, मुझे सरकार बना दीजिए और फिर मैं आपको दिल्ली एम्स में ले चलूंगी, भर्ती कराऊंगी। तो बात वही है कि 5 साल तक तो मैं बीमार रहूंगी नहीं, बीच में ही टाइफाइड होगा, फिर मैं मर जाऊंगी, मैं जिंदा बचूंगी नहीं। तो मिला जुला करके आज के डेट में बीएसपी के पास कोई कैडर नहीं रह गया है, कोई काम नहीं रह गया है। जब भी अगर बात करेंगे तो उनका वही है कि भाई अरे सरकार बनाइए तब हम आपके लिए करेंगे, घर में आग आज लगी है तो सरकार बनाइए तो वो फायर ब्रिगेडर बुलाएंगे, आपके घर में वो आग बुझवाएंगे, तब तक तो मतलब राख भी नहीं बचेगी। हमें आज क्या करना है, आज के समस्याओं पे हमें जनता भी सुनना चाहती है और लोग आज सुनना चाहते हैं कि आज हमारी समस्या है तो आज के लिए क्या निदान है, जो बीएसपी के पास वो निदान नहीं रह गया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जहां तक मैं काम करती हूँ, जहां तक मैं लोगों से मिलती हूँ, कि अब लगातार जो पहले के मानवर साहब के समय में जितने कार्यकर्ता थे, एक टाइम था कि आप पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, लेकिन आज का डेट है कि आज आप बात करती हैं तो आपके पास एक सांसद भी नहीं रह गया, एक अकेला विधायक है, वो भी आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं 2012 से हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीएसपी मतलब
मानवर कांसीराम साहब की बीएसपी नहीं रह गई है। बहन जी भी महापुरुषों के मतलब बताए हुए मैं कहूंगी या उनके रास्तों पे कहूंगी कि वो चलना कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं उनके लोग भी ये बात भूल गए हैं कि भाई जनता में जाना है, जनता की बात सुनना है, जनता के लिए काम करना है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं छोड़ देने के कारण अब वो बीएसपी कमजोर हो चुकी है। आप माइक्रो फाइनेंसिंग के बारे में थोड़ा बताइए और इसका समाज के पिछड़े वर्गों पर क्या प्रभाव है उसके बारे में। मैं क्या बताऊं आपको, माइक्रो फाइनेंस एक ऐसी मतलब एक कहिए कि एक ऐसे कीड़ा है जो समाज को खोखला कर रहा है। ये माइक्रो फाइनेंस वो लोग बांट रहे हैं जिनके पास भी मतलब जो विधायक भी होंगे हो सकता है या पूंजीपति भी हैं जिनके पास 2 करोड़ रुपया है, वो अपना किसी तरह से एक फाइनेंस कंपनी बना लिया है। और मतलब मैं शायद कहना नहीं चाहिए लेकिन एक कुकुरमुत्ते की तरह मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में एक फाइनेंस कंपनियों का जाल बिछा हुआ है। इसमें क्या हुआ कि आप देखेंगे कि सैकड़ों मतलब सोशल मीडिया पे सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे इस तरह से आपको कि जिनके पास 200 रुपया रोज की कमाने की हैसियत नहीं है, मतलब महीने के 6,000 रुपया भी नहीं कमा पाते हैं। एक सीधा सिंपल बात है कि अगर बैंक से आप लोन लेने जाते हैं, अगर हम लोन लेने जाते हैं और बैंक अगर 20,000 रुपया हमको लोन देता है तो बैंक ये इंक्वायरी करता है कि हम 20,000 रुपया लौटाएंगे कैसे। ये बैंक का नियम है। लेकिन यहाँ पे क्या है, और बैंक ये भी करता है, जो आरबीआई गाइडलाइंस ये भी है कि एक लोन आपने नहीं दिया तो दूसरा लोन नहीं मिलेगा क्योंकि एक लोन पहले आपको चुकाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ फाइनेंस में कोई आपको कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। बस महिलाओं को इकट्ठा किया जाता है। जिस महिला को नहीं भी फाइनेंस लेना है, मतलब सूद नहीं लेना है, उससे भी ये कहा जाता है कि अगर आप नहीं सूद लेंगी अपना टारगेट पूरा करने के लिए, जो समूह लोन के ये जो एजेंट होते हैं उनसे कहा जाता है कि अगर आप नहीं लेंगी तो आपका राशन कार्ड काट दिया जाएगा, आपको राशन कार्ड नहीं मिलेगा, आपका आधार कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। आपको नहीं चाहिए समूह लोन तो आप बस सिग्नेचर कर दीजिए और कुछ डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, हम किसी और को दे दे रहे हैं, आपको नहीं पता, आपको मतलब आपके नाम पे हो जाएगा, आपका आधार कार्ड और आपका राशन कार्ड बचा रहेगा। कुछ लोग तो यहाँ तक हद मतलब ये पकड़ा भी गया है, जब हम लोगों ने ये आवाज उठाई, जब हम लोगों ने ज्ञापन वगैरह दिया तो 4 आरबीआई ने 4 फाइनेंस कंपनियों को ताला भी लगाया। एक आरोहन, आशीर्वाद और 2 कंपनी और हैं जो मुझे नाम नहीं याद है, उनपे उन्होंने बैन कर दिया है। तो अभी इसमें क्या हुआ कि जिसके पास 5,000 रुपया भी महीना नहीं आ रहा उसको पास 8 लोन दिया गया, 8 कंपनियों ने दिया, 10 कंपनियों ने दिया। अब हर दिन मतलब हर 2 दिन के पास, जिसके पास आप सोचिए कि जिसके पास 10 लोन ले लिया जिसने, वो हर 3 दिन बाद 2,000, 2,500, 500 रुपया देगा। कमाई क्या है? 1 रुपया, स्रोत 1 रुपया नहीं है। लेकिन उसको हर 2 दिन के बाद उसको 800 देना है, 1,200 रुपया देना है। अगर वो पैसा नहीं दे पा रहा है तो उसके घर पे बकरी है उसको खोल ले जा रहे हैं, उसके घर पे गाड़ी है, बाइक है उसको उठा ले जा रहे हैं, उसके घर पे गैस सिलेंडर है उसको उठा ले जा रहे हैं, राशन है उठा ले जा रहे हैं, नहीं है तो ताला तोड़ करके जो भी कीमती चीज है उसको उठा ले जाते हैं। कई जगह तो यहाँ तक वीडियो में आया, हम लोगों ने जब उस समय पहल कर रहे थे तो बहन बेटियों को भी उठा ले जाने की धमकी देते थे, बच्चों को उठा ले जाते थे। यहाँ तक कि महिलाओं को इन्होंने रखा है, जो फाइनेंस वाले महिलाओं को रखा है, तो उनको बाल पकड़ के, महिला जो पैसा नहीं दे पा रही है बाल पकड़ के मारना, उसको प्रताड़ित करना, गाली देना। मतलब जो उसके पास जेवर भी बचा था, मतलब अगर 10 साल पहले जाएंगे तो महिलाओं के पास, गांव की महिलाओं के पास कान में नाक में थोड़ा थोड़ा आपको देखने को जेवर मिलता था, उसको भी बेच करके महिलाओं ने लोन सूद दे दिया। लेकिन उस लोन को वो चुका रही हैं जो लोन उन्होंने लिया ही नहीं। तो इसके खिलाफ हम लोगों ने सितंबर में ही हम लोगों ने ज्ञापन लिखा था, आरबीआई को लिखा, और फिर हम लोगों ने प्रशासन को भी लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा, यहाँ गोरखपुर मंडल के प्रशासन को लिखा कि इस तरह से चीजें हो रही है, इस पे बैन लगाया जाए, इसको जांच किया जाए, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। अब हुआ क्या, क्योंकि गोरखपुर में हमने जन आंदोलन किया, खड़ा किया मुख्यमंत्री के शहर में, एक तो चीड़ ये रही कि उन्होंने मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाए, मैं किसी तरह से बच गई थी, समाज ने, जनता ने मुझे बचा लिया था। उन्होंने जिस क्षेत्र में मैं
गई ही नहीं, मेरा काम ही नहीं है। उस क्षेत्र से महिलाओं को खड़ा किया, कैसे नहीं किया। और उन्होंने 15 अक्टूबर 2024 को उन्होंने कहा कि सीमा गौतम इस क्षेत्र में जाकर, मतलब जिस जिले में मैं गई ही नहीं, कभी गई ही नहीं हूँ, काम के पर्पज से भी नहीं, वैसे भी नहीं जाना होता है, उस जिले से 500 रुपया मुझ पे आरोप लगाए गए हैं कि 500 रुपया मैं महिलाओं से, सीमा गौतम ने वसूला, महिलाओं का जबरन अंगूठा लगाया और वो थाने का मोहर लगा करके प्रमाण पत्र सीमा गौतम ने दिया। और सीमा गौतम ने कहा कि समूह लोन नहीं देना है और मतलब इस तरह से करके हमारे ऊपर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया। और गोरखपुर से भी दोबारा किया गया, महाराजगंज जिले से किया गया। तो इस तरह से इस हाल में जो माननीय सरोज कुमार निराला जी हैं, उनको 2 महीने तक जेल में रखा, अचानक से उठा लिया गया। हम लोगों को तो क्या है, एफआईआर भी नहीं किया जाता है। एफआईआर तो बाद में तय करते हैं कि भाई कौन सा धारा लगाना है, कौन से केस में इनको डालना है। पहले हमें उठा लेंगे, 12 घंटा 10 घंटा हमें गुप्त रखेंगे, फिर मीटिंग करेंगे कि कौन से धारा में इनको लगा सकते हैं, जिससे लंबे समय तक। तो इस बार मुझे 6 महीने के बाद बेल मिली और 6 महीने तक मैं पूरे मतलब एक तरह से कहिए कि मानसिक, शारीरिक, आर्थिक मतलब हर तरह से मैं परेशान हुई। सरोज कुमार निराला जी भी 2 महीने तक जेल में रहे। तो ये है समूह लोन का मतलब पूरा खेल, जो काला धंधा चल रहा है, जिनके खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाई, हम लोगों ने ज्ञापन दिया। वो ज्ञापन आज भी मेरे पास है कि जिनके पास हम लोगों ने ज्ञापन दिया, तो ज्ञापन पे हमारे काम ना करके, हाँ, लेकिन मैं आरबीआई को धन्यवाद देती हूँ कि आरबीआई ने उसको संज्ञान में लिया। 4 कंपनियों को उन्होंने बैन लगाया। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, खास करके गोरखपुर के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पर हम लोगों पे फर्जी केस दर्ज किए गए हैं और हम लोगों पे चार्जशीट भी लगा दिया गया। अभी तो चार्जशीट भी लग गई है कि हमने 500 रुपया, मैं वहां गई थी, उस जिले में, उस गांव गई थी कि नहीं गई थी, इसका कोई जिक्र नहीं है। हमने किन महिलाओं से पैसा लिया, इसका कोई जिक्र नहीं है। हमने थाने का मोहर लगाया है, उसको कोई जिक्र नहीं है, बस हमने लगा दिया और हमारे खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो गई है। तो ये सारी चीजें हैं। मेरा बस एक फॉलो अप क्वेश्चन था कि माइक्रो फाइनेंस से कौन लाभ उठाता है, उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं, और साथ ही साथ इसके खिलाफ संघर्ष को हम कैसे आगे बढ़ाएं, और संघर्ष को समर्थन अगर देना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए मैम, सबसे पहले लाभ उठाने की बात है तो लाभ आज भी वही पूंजीपति लोग उठा रहे हैं जो सत्ता में हैं। कुछ लोग सत्ता में भी हैं, सत्ताधारी भी हैं, कुछ पूंजीपति भी हैं। क्योंकि यहाँ पे लाभ की बात कर रहे हैं तो उनको पता है, ग्रामीण जो महिलाएं हैं पढ़ी लिखी होती नहीं है, वहां पे जो पढ़े लिखे पुरुष होते हैं या पढ़े लिखे हों, उनको लोन नहीं मिलेगा, सिर्फ महिलाओं को लोन मिलेगा। सबसे बात तो ये समझिए। और लोन उनको दिया जाता है, उनको ये भी कहा जाता है कि अच्छा वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनसे कहा जाता है कि आपको 2% देना है, जबकि उनसे पूरा, मतलब मेरे पास तो लिखित सारी चीजें, उनकी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। मैंने एसपी को भी दिया था, सबको मैंने दिया था, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी पड़े हैं कि मतलब यहाँ तक कि लिखित रूप में 200% का लिखित है कि 2% आपको देना है, 2% आपको ब्याज देना है, 28% देना, आपको 25% देना है, 26% देना है, इतना मतलब आपको ब्याज देना है। तो आप सोचिए कि जो 20,000 रुपया ले रहा है उसको 3 साल 4 साल भरना है, और वो 26%, 22%, 25%, 30%, 32% भर रहा है, तो उसको मतलब लाभ किसको हो रहा है? दूसरी बात यह है कि कुछ समूह लोन जो यहाँ के राज्य सरकार द्वारा भी चलाया जा रहा है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के नाम पे जो लाभ दिए जा रहे हैं वो गरीब महिलाओं तक, जो दलित महिलाएं हैं, खास करके जो पिछड़ी समाज की महिलाएं हैं, वहां तक, उनको तक नहीं पहुंचता है। लोन किसको दिया जा रहा है? जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो एकदम गंवार है, जो कुछ भी नहीं जानती है, उसको बैठा करके ये बात करते हैं। दूसरी बात है, अगर एक महिला को लोन चाहिए, उसको जरूरत है, तो ये कहते हैं कि आपको अकेले लोन नहीं मिलेगा, कम से कम अपने गांव में 10 लोगों को खड़ा करिए। अब वो 10 लोगों को, मतलब जो महिला नहीं भी लेना चाह रही है, उसके मन में लालच भरी जाती है कि आपको ऐसा है, नहीं करना है, आपको ये नहीं करना, नहीं करना। यहाँ तक कि ये लोग तो मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब पकड़े गए हैं। कुशीनगर में जब हम लोग जेल में थे, पूरा सब बहुत ये होने लगा, तो बहुत सारे लोगों पे तो एफआईआर भी हुआ, बहुत सारे लोग पकड़े गए कि आधार कार्ड की पर्ची बना रहे थे,
आधार कार्ड बना देते हैं फर्जी, मतलब आपके आधार कार्ड पे नहीं मिल रहा तो आपके नाम से 4 आधार कार्ड, 5 आधार कार्ड, 4 गो आईडी, 5 गो आईडी, मतलब फर्जी 100 रुपया दीजिए आधार कार्ड बन जा रहा है। जिसको 20,000 रुपया लोन मिल रहा है उसके मान लीजिए पेपर कुछ गड़बड़ है तो ये पहले ही कह देते ठीक है मैं बना दे रहा हूँ, आप हमको 2,000 रुपया दे दीजिए। अच्छा ये यही तक नहीं, ये 4,000 रुपया लेकर के ये जीवन बीमा भी कर देते हैं। जीवन बीमा कैसे करते हैं कि आपका 4,000 रुपये, मतलब एक आदमी 20,000 रुपया ले रहा है उससे 6,000 रुपया, ये लोग 6,000 7,000 रुपया ले लेते हैं जीवन बीमा के नाम पे, पेपर बनाने के नाम पे। और ये क्या कहते हैं कि मतलब जब आप मर जाएंगे, कुछ हो जाएगा तो आपको 40,000 रुपया मिलेगा। जबकि लोग इसी बहाने, मैम बताएं आपको कि इतना इन लोगों ने प्रताड़ित किया, बहुत सारे लोगों ने घर छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, बहुत सारे लोगों ने मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गए, बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर लिया। मतलब ये खुद कहते हैं कि नहीं लोन दे सकते हो तो जहर खा के मर जाओ, आत्महत्या कर लो, तुम्हारा लोन माफ हो जाएगा। मतलब अगर आपके पति, मतलब अगर कोई महिला ली है उसके पति का डेड बॉडी घर पे रखा है फिर भी उसको पैसा देना पड़ेगा, डेड बॉडी पड़ा है फिर भी पैसा देना पड़ेगा। अगर सास का भी डेड बॉडी पड़ा है फिर भी उसको पैसा देना पड़ेगा। जब तक वो महिला नहीं मरेगी तब तक वो लोन माफ नहीं होगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये फायदा किसको हो रहा है? गरीबों को। तो गरीब तो और गरीब होता जा रहा है एक लोन चुकाने के चक्कर में। अच्छा ये लोग नहीं चुका पाते, कहते हैं हम एक साहब को भेजेंगे उनका सस्ता होगा। एक लोन चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन लिया जा रहा, दूसरा के चक्कर में तीसरा, चौथा, पांचवा। अब ऐसे कर करके 8-8, 10-10 लोन, 20-20 लोन एक एक महिलाओं ने ले लिया है। और कुछ को तो पता ही नहीं है कि उनके नाम पे कितना लोन है, उनको जबरदस्ती लोन दे दिया गया है। तो इसमें जो फायदा लेने वाले हैं, तो इसमें फायदा लेने वाले पूंजीपति हैं, जो सत्ताधारी हैं, उनको फायदा हो रहा है। अगर इसके खिलाफ लड़ना है, आवाज उठाना है, तो लोगों को जागरूक करना होगा, लोगों को अवेयरनेस करना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना होगा, उनको ये बताना होगा कि आपके साथ गलत हो रहा है, ना आप लोन लीजिए, आपके प्रति कोई भी आपका ना आधार कार्ड में रख सकता हो, ना ही आप कार्ड मर्जी नहीं दे सकते। उनके पास इतनी समस्या नहीं थी। लेकिन मैम ये जो लोन, समूह लोन ने गांव में आपस की भी रिश्ते खत्म कर दिए। पहले लोग था तो कम से कम एक दूसरे के थे, आज जो 10 लोगों को लोन लेते हैं ये समूह बना के 15 लोगों का, तो उन्हीं महिलाओं से जो महिला नहीं पैसा दे पाती उसको प्रताड़ित करवाते हैं, क्योंकि उस 15 महिला को ये बैठाए रहेंगे तब तक जब तक उसका पैसा नहीं आ जाएगा। तो एक महिला की वजह से अगर 10 महिलाएं बैठे रह रही हैं तो वो गुस्सा करती हैं कि भाई आपने पैसा लिया तो आपको देना पड़ेगा। दिलवाया जब लेना था तो बहुत आसान दिखा, बहुत लालच दिया गया, प्रलोभन दिया गया। अब देने की बारी आई तो सारे लोग हाथ खड़ा कर लेते हैं और उस महिला को प्रताड़ित करते हैं। मेरे सामने बहुत सारे आए हैं जिसमें लोगों ने हत्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। और उसी आत्महत्या से बचाने के लिए हमने लोगों को जागरूक करना कोशिश की कि अगर आपसे कोई लोन मांगता है, अगर जोर जबरदस्ती 11-11 बजे रात को उसके घर पे बैठे रहना, उसके घर पे फोन करना 11 बजे रात को, 12, हमने कहा कौन से आरबीआई के कौन से गाइडलाइंस है कि जो 11 बजे रात को आप बैठेंगे? आप कौन से आरबीआई के गाइडलाइंस है कि आप किसी की पत्नी को उठा ले जाने की बात करेंगे, आप किसी की बेटी को उठा ले जाने की बात करेंगे, आप किसी के बच्चे उठा ले जाने की बात करेंगे? कौन सी आरबीआई की गाइडलाइंस है? भाई आरबीआई भी पैसा अगर नहीं लोग नहीं दे पाते तो नोटिस जारी करता है। आपने नोटिस क्यों नहीं जारी किया? आपको किसने हक दिया है कि आप 11 बजे रात तक बैठे रहेंगे? यहाँ तक ये लोग कहते हैं कि कुछ भी करो, खुद को बेचो या कुछ भी करो, लेकिन पैसा आपको देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से जो महिलाओं ने, मतलब कई महिलाओं मेरे सामने मैम मतलब अपनी आपा खो दी, मतलब उनके सामने बात करेंगी तो उनको लगता है कि कुछ भी नहीं, मारना पीटना कुछ। ऐसे लोगों को बचाने के लिए हम लोगों ने एक मुहिम हम लोगों ने छेड़ा कि लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है कि भाई आपके पास अगर कोई घर पे लोन, भाई जबरदस्ती लोन दिया गया है, आपको जो लोन लिया नहीं है उस लोन की वसूली की जा रही है, तो आप डीएम से शिकायत करें, आप एसपी से शिकायत करें। लेकिन हम लोगों ने तो जागरूक करने की कोशिश की, लोगों को जगाने की कोशिश की, लेकिन हम लोगों पे मतलब क्या बताएं, हम लोगों पे जब एफआईआर हुआ, पेपर में निकला,
तो पेपर भी हम लोगों के खिलाफ ही छपा कि इन्होंने तो पहले विदेशी फंड लिया था, विदेश से हमला कर हम विदेशी नागरिक बुलाया, इन्होंने विदेशी फंड लिया। भाई विदेशी नागरिक है, हमारे घर पे कोई भी आता है, मेहमान आता है। वैलेंटाइन हमारे साथ आए, हमारे साथ काम किए, उनको काम करना था, एक फिल्म बनाना था, डॉक्यूमेंट्री। तो वो हमारे मेहमान थे। जब भी वो हम लोगों ने कोशिश किया कि भाई इतनी दूर से कोई व्यक्ति आया है, अगर आपके लिए आया है, कुछ बनाना चाहता, कुछ तो करना चाहता, तो मतलब जो भी हम लोगों से हो पाए हम लोगों ने सहयोग करने की कोशिश किया। लेकिन हम लोगों पे क्या लगा कि हम लोगों ने वैलेंटाइन से विदेशी फंड लिया है आंदोलन करने के लिए, और इसी चक्कर में वैलेंटाइन को भी, मतलब अगर मुझे पूरा यकीन है मैम कि वैलेंटाइन अगर दलितों पे न करके, डॉक्यूमेंट्री न बना करके, अगर वो किसी देवी देवता पे बनाए होते या सौरव पे बनाए होते, मतलब अपर कास्ट के लिए बनाए होते, तो वैलेंटाइन का बड़े अखबारों में फोटो भी छपा होता। सब समाज के लिए इतना बड़ा त्याग है इनका, इतना बड़ा काम है। लेकिन इनका दोष इतना है कि इन्होंने दलितों के लिए काम करना शुरू किया, जिसके वजह से उनको महीनों दिन तक जेल में रहना पड़ा, बहुत सारे यातनाएं झेलना पड़ा। जबकि उनका कसूर इतना ही था कि मतलब वो मेरे साथ लगभग 10 से 15 दिन काम किए, फील्ड में गए, और उसके बाद वो वही गरीब महिलाओं के घर जाते थे, गरीब महिलाओं की स्थिति जानने की कोशिश करते थे। लेकिन यही गलत हो गया कि दलितों के बारे में क्यों बात करना है तो भाई अच्छे अच्छे बात करो। तो हकीकत पे बात करना गुनाह है, और वही गुनाह की सजा हम भी भुगत रहे हैं कि 1 साल में मुझ पे भी 4 FIR दर्ज हो गए हैं। और मेरी अभी हाल की बात करूं तो मेरी कुछ पैतृक संपत्ति थी, उसको भी हड़प लिया गया है। उसमें भी सरकार ने, मतलब अब क्या मैं बताऊं, अगर मैं समाज के काम छोड़ दूं तो शायद मैं ठीक रहूंगी, लेकिन क्या करें, फितरत ही अपनी वैसी है कि मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। सच बोलना है तो बोलना है। वैलेंटाइन का भी वही है फितरत कि उन्होंने सच बोला तो उनको भी 1 महीने की जेल काटना पड़ा। तो यही है कि अब क्या करें, प्रशासन तो हमारे पीछे पड़ी हुई है। अगर मैं अभी बात करूं कि मुझे कुछ काम करना है तो हमारे घर पुलिस पहुंच जाती है। आरोपी को पकड़ने के लिए उनके पास पुलिस नहीं मिलेगी, लेकिन सीमा गौतम के घर पे छापा मारने के लिए पुलिस तुरंत पहुंच जाती है। तो ये सारी समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। लेकिन उम्मीद एक है कि ये कहिए कि जो हम लोगों ने जन आंदोलन किया उसमें हमारे 12 साथी, वैलेंटाइन को लेके 12 साथी हमारे जेल में गए थे, और जो जिनका कोई कसूर नहीं था, जन आंदोलन पे उस पे भी लगाया गया कि हम लोगों को चारों तरफ CCTV कैमरा लगा था, उस प्रांगण में चारों तरफ से CCTV कैमरा था, पुलिस फोर्स तैनात थी। लेकिन हम लोगों पे दस्तावेज फाड़ने का, गमला तोड़ने का, यहाँ तक कि जो कमिश्नर है उनके नाजिर का गला दबा के जान से मारने की कोशिश में हम लोगों पे FIR दर्ज हुआ, जिसका एक भी फुटेज उनके पास नहीं है। लेकिन बिजली चोरी का भी हम लोगों पे लगा। तो हमारे 12-13 साथी जेल गए, 28 लोगों पे FIR हुआ था, जिसमें मैं भी नामजद, मेरे पर भी मैं भी आरोपी रही। तो उसका एक परिणाम हुआ कि राष्ट्रपति ने 800 परिवार को, गोरखपुर मंडल में 800 परिवार को 1-1 एकड़ जमीन देने के लिए उन्होंने आदेशित कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को। और उत्तर प्रदेश सचिवालय से गोरखपुर मंडल के 4 जिले में, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, हर एक जिले में 200 परिवार को 1-1 एकड़ जमीन देने के लिए वहां से DM को आदेशित किया गया है। लेकिन अब देखना ये है कि जो DM है वो लोग लगातार हम लोगों के संपर्क में हैं। उन लोगों ने लिस्ट भी मांगी है, हम लोगों ने लिस्ट भी दे दिया है। लेकिन अब देखना ये है कि जमीन कब तक मिलती है। अगर ये जमीन मिल जाती है तो हम यही मानेंगे कि हमारे ऊपर जितना भी FIR लगा या हमें जितना भी कष्ट हुआ, तो कम से कम उसका सफलता दिखता हुआ मिल रहा है। लेकिन अभी जमीन मिली नहीं है, तो लेकिन उम्मीद एक जगी है। तो यही है